Hello students, in this video lecture we will determine the energy of band gap of a semiconductor material using 4 probe method. Now the main apparatus of 4 probe method is we have the 4 probe arrangement. It consists of individually spring loaded probes. ये आपको 4 प्रोब्स इसमें दिखाई दे रही हैं. यू हैव 4 प्रोब्स. दीज प्रोब्स आर लीनियरली अरेंज्ड एंड इक्वी स्पेस्ड. इनके एक प्रोब का दूसरे प्रोब से के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 0.2 सेंटीमीटर. एंड इंडिविजुअल स्प्रिंग इंश्योर गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द सैंपल. ये आपका यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है और इससे आपका जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है विद दी सेमीकंडक्टर मटेरियल वो आपका ठीक रहता है. एंड द होल अरेंजमेंट इज माउंटेड ऑन ए सूटेबल स्टैंड एंड लीड्स आर प्रोवाइडेड फॉर करंट एंड वोल्टेज अरेंजमेंट मेजरमेंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, it consists of oven. Now this oven, it is a small oven for studying the behavior at different temperatures of the crystal ranging from room temperature to about 200 degrees centigrade. Now the next part is the 4 probe setup. In this setup, we have all the sub-units which are enclosed in one cabinet. The 4th part, it consists of a digital panel meter. This is the panel meter from where you will read your voltage and current. Then we have the thermometer, which can read up to 360 degrees centigrade of temperature. And the 5th part, it consists of constant current generator. Now this current generator, the outer probes the outer 2 probes of the 4 probes, they are connected to the current generator, which are usually we denote them by red and black leads. And the inner 2 probes are connected to the voltmeter, which will measure the voltage, and they are usually labeled as yellow and green leads. Now next we come to the experimental procedure. Put the sample, we will place the sample on the base plate of the 4 probe arrangement, which has already been placed by the manufacturer, and then we will place this whole arrangement in the oven. इसको आप इस तरह से oven में place कर देंगे. Then we will connect the outer 2 leads, यानी कि red और black जो हमने already connect कर दी हैं constant current power supply के साथ, और जो inner leads हैं जो yellow और green हैं उनको हम voltage terminal के साथ हम connect कर देंगे. और फिर हमने क्या करना है, जो 4 प्रोब अरेंजमेंट को हमने अवन में रखा है उस अवन की सेंसर लीड को भी हम इस 4 प्रोब सेटअप के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. इसको हम RTD कनेक्टर कहते हैं टू दी पैनल. उसके बाद हम मेन सप्लाई ऑन करेंगे 4 प्रोब सेटअप की, और
and we will put the digital panel meter in the current measuring mode. current measuring mode के लिए ये हमारे पास नॉब है. अगर आपने करंट मेजर करना है तो नॉब आप ऐसे रखेंगे, और अगर वोल्टेज मेजर करनी है तो नॉब आपकी इधर चली जाएगी. तो हम इसको करंट मेजरिंग मोड पे इसको सेट करेंगे. तो जब हम करंट मेजरिंग मोड में इसको सेट कर देंगे, इस पोजीशन पे आपकी जो एलईडी फेसिंग आपका मिली एम्पियर्स इट विल ग्लो. तो हम इसको करंट को एक डिजायर्ड वैल्यू पे सेट कर देंगे. सपोज इट इज 5 मिली एम्पियर या 8 मिली एम्पियर्स, इन दोनों में से हम किसी भी एक वैल्यू पे सेट कर देंगे. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द डिजिटल पैनल मीटर इन दी वोल्टेज मेजरिंग मोड. इसका मोड हम चेंज कर देंगे और इसको हम वोल्टेज मेजरिंग मोड में कर ले आएंगे. इन दिस पोजीशन एलईडी फेसिंग दी वोल्ट मीटर मिली वोल्ट इट विल ग्लो एंड द मीटर वुड रीड दी वोल्टेज बिटवीन दी प्रोब्स. फिर हमने क्या करना है, वी विल कनेक्ट दी oven पावर सप्लाई and rate of heating will be selected with the help of this switch. Switch on the power to the oven. The glowing LED indicates that the power to the oven is on. Now further instructions will be given by Navneet ma'am. Okay students, now come to our practical part. In this we have already discussed about the connections, that what is the working of this 4-probe arrangement. Now we will discuss that how constant values are being provided in this, and we will discuss the readings according to how we will put in the table also. Basically आप लोग क्या करोगे इसमें, अब हमने यहाँ पर हमने ओवन को ऑन कर दिया है, तो ओवन जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने रूम टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर की रीडिंग आ रही है वो नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से. तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रूम टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये रीडिंग पड़ रहा है. तो रूम टेम्परेचर की आपकी रीडिंग आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. केल्विन में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, जब हम रीडिंग पुट करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में. तो हम लिख लेंगे पहले 20, सपोज 30 डिग्री है यहाँ, तो हम लिख लेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फर्स्ट रीडिंग हमने लिख ली, और इसी पे हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस नोट डाउन कर लेना है. और हमने कांस्टेंट करंट सप्लाई रखी हुई है पहले ही 8 मिली एम्पियर. अब जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 67.3, वो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पुट कर लेना है. तो वोल्टेज कितनी आ रही है, 66 जो भी हमारी यहाँ पर आ रही है वो फर्स्ट रीडिंग हम लिखने जा रहे हैं, वो यहाँ आ जाएगी. टेम्परेचर हमारा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वो यहाँ आ जाएगा. फिर हमने क्या करना है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री, पोटेंशियल डिफरेंस इज 65.7 एंड कांस्टेंट करंट सप्लाई इज 8 मिली एम्पियर एंड हेयर वोल्टेज इज ऑल्सो इन मिली वोल्ट. सो नाउ ओवन इज बीइंग हीटेड. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे लो पे. सपोज हमने इसको पहले रखना है लो पे, और हमने थर्मामीटर को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है ओवन के अंदर.